good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's on Right to Information Act. On this subject, our very respected CA turned advocate Nipun Singhvi with us. I welcome Nipunji. I also welcome Sunil Dhamijaji, Hemant Pawaji, and all the attendees. And today we will discuss the overview of RTI, history of the RTI, important definitions, what is information, what is right to information, where RTI can be filed, who can file RTI, and drafting of RTI. And on this subject, our Nipunji is with us. To briefly introduce him, he is a practicing advocate, FCA, CS, law graduate, LLM in corporate law, certified forensic IFRS bank auditor, qualified independent director, executive program on merger and acquisition. He has been member of World Bank Insolvency Group on train the trainers jointly with IBBI and IPF, all three institutes, ICI, ICSI, and ICMAI. He has been part of various committee of ICI on corporate law, bank audit, accounting standards, contributed to WIRC reference manual on insolvency laws, guide to IBC by Bloomsbury. He has delivered more than 1,500 lectures on various laws, regular faculty at ICI, ICSI, Nationalized Bank, CAG, Trade Association, etc., and regular author of various corporate and tax journal, majority in tax men. Corporate professional, today, Economic Times, Tax Guru, Tax Scan, Live Law, IBC Law.com. He is an expert on corporate, commercial, and insolvency law, advised and handled insolvency cases having debt more than 1 lakh crore. And important cases include JP Infratech, Lanco Infra, SR Steel, SR Oil, SR Shipping, Reliance Naval and Engineering Limited, Gujarat Ambuja Export Limited, Syntax Industries Limited, AVG Shipyard Limited, Digjam Limited, Today Writing and Gopala Polyplast Limited. He is also a RTI activist. Disclosure of willful defaulters by ICI, SBI for the first time. RERA tribunal appointment. NCLT member appointment without approval of law ministry. Listed PSU appointment of independent director. Unearthing crores of penalty paid to BSE, Public NSE. This is the brief profile of today's our very learned advocate CA Nipun Singhvi. I welcome you, sir, once again, and over to you, sir. Thank you, Agarwal ji. Thank you, Damija ji. Thank you, Pawa ji. So nice of you. And it is my privilege that I have been now coming to NIRC. This is my first time that I am coming to NIRC. Mostly I am in WIRC or CIRC. So it is very nice. In fact, I have always loved this topic. And I tell you, the first RTI I had filed was when I was doing my graduation. So in fact, even before becoming chartered accountant, I started doing this RTI. And I tell you, from that till today, almost 12 years have gone. Every year now, number of RTIs which I file or advise have increased day by day. And when I was practicing as a chartered accountant, in fact, my father is also a practicing chartered accountant. So I started my working under him only. And thereafter, I learned that suppose if we file an RTI and get some information, how to use that information for public use. For public good, we will have to go to court. So before going to court, before filing a writ petition or a PIL, maybe in public interest, maybe for some particular individual, it is very important that we gather the information under RTI. So I would say RTI is not only a tool, it is now become a weapon. If it is smartly used, we can use it as a weapon against whatever odd, I would say, corruption, evils, whatever is there. It is a very good weapon. And today what I have done is this particular topic, I have thought it from the view of a chartered accountant. How a chartered accountant should use RTI in his day-to-day practice, and even as a citizen, how we can use it. Some of the examples also during COVID, we had filed some RTI, gathered information, and then filed a PIL where we got good orders. So that also case studies we will be taking. So I think I would just, sir, are you able to see my screen?
Yes, sir. Agarwal ji. Yes, sir. Yes, sir. So I say it like this. What is RTI? RTI is nothing but your right to information. Now, everybody thinks whenever our right is infringed, what we do, we go to a court to say that our constitutional fundamental right is infringed. Now, RTI is an act whereby you are getting your fundamental right enforced through this particular law. Therefore, I always say it is an oxygen which helps you to survive against all odds. And whatever structure we are maintaining in the society, how to come out of that through this particular oxygen if we are getting suffocated. So now, basically, you must have seen for income tax, for company law, for any other law, what we do GST. If we are agree, we go to High Court, file a writ petition, and say, "Sir, my right to do is business is infringed." So Article 19 is normally invoked, and we file a writ petition and say to the court, "Sir, मेरे साथ ये गलत हो गया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ है, मेरा बिजनेस इसके कारण अटक गया है, मेरे को गलत तरीके से इस मैटर के अंदर फंसा दिया है, whatever." We always say this is my fundamental right to do business in this country and that is getting infringed, therefore I have filed a writ petition. Now, why RTI Act is there? Why we cannot file a writ petition in High Court? So this thought actually came when the parliament was thinking of making this law, because ultimately right to information is nothing but your fundamental right. So right to life, right to liberty is interpreted in a way right to information is included in it. So right to information कुछ भी नहीं है. It is your right to get the information. लेकिन there are some conditions, some restrictions, some prohibition. ये ऐसा अनफेटर्ड राइट नहीं है कि ये राइट omnipotent है, नहीं, ऐसा नहीं है. There are some terms and conditions. इसीलिए there is a statute which is RTI Act. So statutory rights are different from constitutional rights. जिसकी benefits हमको constitution में मिलेगी, we always call them constitutional remedy. जिसके benefit किसी act में मिलेंगे, we will call them as statutory remedy. So there is a clear-cut bifurcation between both of them. What is statutory? What is constitutional? Now this law is a statutory right. It is not a constitutional right. तो क्या एक NRI RTI लगा सकता है? Answer is no. For filing, you have to be citizen of India. If you are citizen of India, yes. क्या कोई अमेरिकन आके इंडिया में RTI लगा पाएगा? Answer is no. So RTI Act के fetters, or I would say conditions, restrictions are limited. Therefore, you will have to always refer to the Act to think whether this information is given under RTI Act or not. If not, there are other ways and means that we will discuss. थोड़ा सा historical background just to understand RTI law, how it evolved. Then we will come on to the law part and then case study. So RTI actually started from Rajasthan. It was started by one Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. सबसे पहले इंडिया में RTI लॉ आया ही राजस्थान में. कैसे? Indirectly. At that point of time, laborers were paid X amount by the government. Let's say 3,500 rupees was fixed for the worker, but actually they got only 1,000 rupees. 2,500 all eaten away by middlemen. सब बीच में चला जाता था. People used to sign, get the money. They did not know कि government कितना pay कर रही है. उस समय, seeing that situation, government of Rajasthan brought out concept of right to information under Panchayati Raj rules. And thereafter, when people started filing under that rule, you won't be astonished कि वहां पे पैसा वो घर पे आके वापस देके गए. जैसे ही लोगों ने इंफॉर्मेशन लगाई, जो 2,500 रुपए बढ़ जाता था, वो लोग उनके घर पे आके वापस देके गए, भाई साहब आप RTI मत फाइल कर देना. इंटरेस्टिंगली, आई एम प्रिविलेज्ड कि मेरे जो सीनियर्स थे जिनके साथ मैंने काम किया, उन दोनों सीनियर्स को उस समय अर्स्टवाइल गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ने इसकी एक्चुअली फील्ड स्टडी करने के लिए भेजा था. दोनों सीनियर एडवोकेट्स आज की डेट में दुनिया में नहीं रहे हैं. हमारे मरुदर मृदुल जी थे और
बोड़ा साहब थे, they both are not there, but they were the persons who were actually sent by government to the पंचायती राज लेवल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, कहाँ इतना पैसा पिलफर हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। तो उधर से ये कॉन्सेप्ट आया और पंचायती राज रूल्स में फर्स्ट टाइम आरटीआई इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कहीं एक्ट आया, आंसर इज नो। कोई स्पेसिफिक आरटीआई एक्ट नहीं आया राजस्थान में, लेकिन स्पेसिफिक लॉ आया तमिलनाडु में। सो दो इसका ओरिजिन राजस्थान में है, पर एक्ट इन्फोर्स पहले हुआ तमिलनाडु में। इसके बाद ओवरऑल इंडिया के अंदर आरटीआई की बहुत डिमांड हुई and government started making the law, and the law was called freedom of information act जो 2002 में आया। लेकिन it could never see the light of the day, वो कभी नोटिफाई हो ही नहीं पाया। आया लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ। उसके पेंडिंग काफी सारी चीजें चेंज हुई, और जो आरटीआई एक्ट हम अभी पढ़ रहे हैं 2005 का, दैट वाज द फर्स्ट एक्ट व्हिच वाज रीअमेंडेड फ्रॉम फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और आज हम लोगों के पास जो एक्ट है, दैट इज बाय दैट एग्जॉस्टिव अमेंडेड एक्ट ऑफ फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन। सो दो ओरिजिनली इसका नाम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, बट सिंस वो नहीं आ पाया इसलिए आरटीआई एक्ट आया। सो ब्रॉडली स्पीकिंग हम आरटीआई एक्ट का अगर प्रियम्बल देखें तो ये 4 चीजें होगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कभी कभी हमको इंफॉर्मेशन जहां डिनाई करते हैं तो वी ऑलवेज आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? वन इज देयर शुड बी अ वे, अ प्रोसीजर अंडर द लॉ so that the government offices are accountable. See, I am using the word government offices. Act में word use है public authority. हम discuss करेंगे what is public authority, but for a layman, it's more or less government office. To promote transparency and accountability, इस law में mandatory कर दिया है, ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आरटीआई डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट में ये सारे मिनिमम डिस्क्लोजर्स होंगे, और ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उसके लिए उसको पेनल्टी लगेगी, अगर वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है तो भी पेनल्टी लगेगी, और सीरियस केस में आगे प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। थर्डली, अंडर दिस एक्ट देयर आर 2 प्रोसीजर्स टू अपील। पहली अपील है डिपार्टमेंटल अपील, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। सेकंड अपील है इधर बिफोर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये दोनों कमिश्नर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाउ इट अपील्स एंड हाउ इट गोज इन फ्यूचर। सो फर्स्ट, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बिकॉज ये डेफिनेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम आरटीआई में क्या मांग सकते हैं, what we can ask for under RTI Act. So we have to understand what is the word information. So information means that any record, so whether it is physical record or it is electronic record, both are information. Any document, any memo, मैंने ये बहुत बार देखा है कि आरटीआई में लोग एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। सो दैट इज वेरी रॉन्ग। यू हैव टू आस्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कभी कभी हमको पता नहीं है कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी नीड टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन राइट इन योर आरटीआई, प्लीज प्रोवाइड मी all the documents relating to so and so circular, so and so notification, including file notings. Very important. फाइल नोटिंग्स भी आरटीआई में कवर्ड है। फाइल के अंदर उन्होंने जो इंटरनल नोट बनाया है वो भी आपको देने के लिए लायबल है। हाँ, जब तक कोई प्रोसेस चल रहा है तब तक वो कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। लेट से कोई टेंडर का प्रोसेस है, उसके बीच में कहीं कोई फाइल नोटिंग्स हो रही है, उस समय तक वो आपको नहीं दे सकते। लेकिन टेंडर कंक्लूड हो गया, एक्स या वाई को टेंडर मिल गया, उसके बाद वो आपको सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंटली दे विल हैव टू गिव यू, इंक्लूडिंग द फाइल नोटिंग्स। मैं इसमें केस स्टडी भी लूंगा, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसकी भी नोटिंग्स जब आरबीआई की कमिटी की निकाली तो पता पड़ा कि आरबीआई के गवर्नर को भी नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है। सो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विल कम। इन शॉर्ट, फाइल नोटिंग्स आर कवर्ड, ईमेल आर कवर्ड, ओपिनियंस आर कवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ओपिनियन डिपार्टमेंट ने एक्सप्रेस करी है तो वो ओपिनियन कवर्ड है, लेकिन इसको रिवर्स नहीं समझे कि मैं आरटीआई में ओपिनियन मांग सकता हूं। आंसर इज नो, यू कैन नॉट आस्क ओपिनियन अंडर आरटीआई कि इस लॉ का मीनिंग क्या है, ये नहीं पूछ सकते। लेकिन हाँ, किसी केस में उन्होंने कोई ओपिनियन ली है, किसी लेट्स से कमिश्नर है, नीचे असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके नीचे जॉइंट कमिश्नर है, वहां से उन्होंने
ओपिनियन बनाई है, वो ओपिनियन की कॉपी आपको मिल सकती है। एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आरटीआई के अंदर आता है और आप मांग सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, सैंपल्स इज ऑल्सो कवर्ड, मॉडल्स इज ऑल्सो कवर्ड, any information relating to private body which can be accessed by public authority is also included. For example, Reliance Industries Limited is a private company, लेकिन उसने जो आरओसी में फाइलिंग करी है वो पब्लिक है। आरओसी एक पब्लिक अथॉरिटी है, उसके पास जो भी पब्लिक रिकॉर्ड रखा है वो हम मांग सकते हैं। हम रिलायंस से उसका फॉर्मूला नहीं मांग सकते, केमिकल फॉर्मूला, लेकिन उसने जो फाइलिंग करी है किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास, दैट इज एक्सेसिबल अंडर आरटीआई एक्ट। अब सैंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये काफी इंटरेस्टिंग केस लॉ भी है। अगर हमको लगता है कि हम रोज ऑफिस जाते हैं, रोज घर जाते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे रोड का पैच है, रोड बराबर नहीं बनी है, ऐसा हमको लगता है, तो क्या मैं उस रोड का सैंपल आरटीआई में मांग सकता हूँ? यस, मांग सकता हूँ। इंफॉर्मेशन इंक्लूड सैंपल, तो आरटीआई में आप सैंपल मांग सकते हो और उस सैंपल की टेस्टिंग करवा सकते हो कि वो पर्टिकुलर सैंपल सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके खिलाफ फ्यूचर में आप कोर्ट में जाके कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग और फेमस जजमेंट है, दीपक यादव वर्सेस पीडब्ल्यूडी, जहाँ पे उन्होंने हाईवे के अंदर से सैंपल निकालने के लिए आरटीआई में मांगा, और बाय पेइंग द अप्रोप्रिएट फी, उस केस में कुछ डिटरमाइन की थी 7500, वो दे के उनको सैंपल मिल गया, और सैंपल को उन्होंने आगे टेस्ट किया और उसके बाद कुछ कॉम्पनसेशन उन्होंने मांगा। सो पॉइंट इज कि सैंपल भी आरटीआई में आता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो काफी लोगों को नॉर्मली नहीं पता होता कि सैंपल भी हम आरटीआई में मांग सकते हैं। अभी कोई नोटोरियस पर्सन ये भी सोचे कि सर सब लोग सैंपल मांगने आ गए तो रोड ही खत्म हो जाएगी। हाँ, इसीलिए यहाँ पे चेक है कि आरटीआई में आप सैंपल मांग सकते हो और सैंपल देने की एक अथॉरिटी है, और ऐसा नहीं है कि सब लोग सैंपल मांगने आ गए तो मिल जाएगा। बट यस, लॉ में लिखा है कि कोई रोड है तो उसका कितना परसेंटेज सैंपल में दिया जा सकता है, कुछ 10% समथिंग उसमें लिखा हुआ है, एंड दैट हैज टू बी अगेन रेप्लेनिश्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो सैंपल रोड वो अलग से कॉर्नर में रखते हैं। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन क्या है? काफी सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग मिस्टेकन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इंस्टीट्यूट आरटीआई में आता है, सीए इंस्टीट्यूट आरटीआई में आता है, सीएस इंस्टीट्यूट आरटीआई में आता है, तो क्या हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, जो इंस्टीट्यूट पब्लिश करते हैं, उसको हम आरटीआई में मांग लें? क्योंकि हम लोग बुक खरीदेंगे तो शायद 2000 की पड़ेगी, आरटीआई में तो सस्ते में आ जाएगी। सो इसके ऊपर बहुत अच्छा जजमेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जजमेंट है, उसमें ऐसा हेल्ड किया गया है कि अगर कोई प्राइज्ड पब्लिकेशन है, ऑलरेडी वो अथॉरिटी पब्लिकेशन निकालती है और आप पैसा देके उसको खरीद सकते हैं, तो फिर आप उसको आरटीआई में नहीं मांग सकते। क्यों? कि इट इज अ प्राइज पब्लिकेशन ऑलरेडी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, so therefore it should not be asked under RTA, or if you ask they will send you, sir, this is the price, this is a price publication, you pay the price, we will provide you, simple। इट खैर मीन्स सर आजकल तो हमारा ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। यस अग्रवाल जी। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन इजीली या मार्केट में अवेलेबल है उनको हम आरटीआई के थ्रू मांग भी नहीं सकते, और मांगने का कोई फायदा भी नहीं है जब वो इजीली अवेलेबल है करेक्ट, तो। जी सर, करेक्ट। ठीक। दूसरा, इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? इंफॉर्मेशन नॉर्मली, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे गए तो रेलवे की जो डिटेल्स है, कौन सी गाड़ी कब जाएगी, एयरलाइंस में जा रहे हैं, टाइमिंग मांगनी है, दैट इज नॉट अ इंफॉर्मेशन। जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, उसको हम आरटीआई में मांग नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, कुछ केसेस में हम लोगों को किसी कोर्ट पर्पस के लिए हो सकता है वो आरटीआई में वो इंफॉर्मेशन मिल भी जाए, लेकिन इन जनरल अगर वो इंफॉर्मेशन प्राइज्ड पब्लिकेशन है, उसके लिए ऑलरेडी कुछ पैसा लेके दे रहे हैं, तो देन दे विल डिनाई यू अंडर आरटीआई, सेइंग दैट आप पैसा दीजिए और ले लीजिए। नाउ ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिनके पास
कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, और हम प्राइवेटली नहीं ले सकते बट थ्रू पब्लिक अथॉरिटी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस जजमेंट, और आई थिंक पिछले 2 महीने में 3-4 बार इसको मीडिया ने भी डिस्कस किया है। आरबीआई के अगेंस्ट एक पर्सन ने आरटीआई लगाई थी, उन्होंने डिफॉल्टर्स की लिस्ट मांगी थी। इंडिया में ऐसे कितने डिफॉल्टर हैं जिन्होंने 1000 करोड़ से ऊपर का डेप्ट विलफुली डिफॉल्ट किया है? कितनी बैंक्स ने उसके ऊपर कितना अमाउंट राइट ऑफ किया है? और उन सब कंपनीज और लोगों की लिस्ट चाहिए। सो दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड अंडर आरटीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम लोग ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बट अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन हम फिड्यूशरी कैपेसिटी में बैंक से ले रहे हैं, जो कि इंटर्न कस्टमर से ले रहे हैं। सो प्राइवेसी का आर्ग्यूमेंट लेके उन्होंने डिनाई कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज योर ड्यूटी टू मेक द नेम्स ऑफ ऑल द विलफुल डिफॉल्टर पब्लिक, give all the annual information report of each and every bank in public domain। इनफैक्ट आपको चला के डाल देनी चाहिए। इट इज नॉट कि कोई आपके पास आएगा, आरटीआई लगाएगा, फिर आप देंगे। आपको सुओ मोटो इसका डिस्क्लोजर ही कर देना चाहिए। दैट इज व्हाट द आर्ग्यूमेंट्स हैपेंड एंड कंक्लूडेड। उसके बाद कुछ प्राइवेट बैंक्स ने, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कुछ बैंक्स ने अभी रिव्यू पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि सर इससे तो हमको आपने सुना ही नहीं, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सुन के ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू आर वॉचिंग ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड वॉट एवर इट इज यू हैव टू डिस्क्लोज। जिस आदमी ने नेशन का पैसा लिया है, बाहर जाके बैठ गया है, पैसा खा लिया है, यू हैव टू डिस्क्लोज, यू कैन नॉट कंसील द इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस कर दी। तो नाउ इट इज अ क्रिस्टलाइज लॉ कि विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट आप मांग सकते हैं। मैंने भी मांगी थी, मैंने आगे केस स्टडी में कवर किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आज से 3 साल पहले विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट मांगी थी पूरे इंडिया की, उन्होंने डिनाई करी थी मुझे। मैंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को रिलाई करके मांगी थी, उसके बावजूद डिनाई करी। फिर हमने अपील करी, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी ने डायरेक्शन दिया, जब जाके हमको पूरी लिस्ट मिली। और उसके बाद इट हैपेंड, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि शायद वो हमारी वजह से हुआ होगा, बट मोस्टली सारी बैंक्स ने विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट अपने होम पेज पे रख दी है। आज आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की साइट पे जाएंगे, वेदर पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, सब ने विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट एक्सेल में रख दी है, तो हम कोई भी जाके उसको व्यू कर सकते हैं। सिमिलरली एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, वेदर एक स्कूल पब्लिक है, वेदर एक स्कूल प्राइवेट है। सो इट स्टार्टेड अगेन फ्रॉम गुजरात वेयर आई एम प्रैक्टिसिंग। हम लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट के अंदर पहले आरटीआई में डिटेल निकाली थी, फिर पीआईएल फाइल की थी। यहाँ पे जो फी फिक्स हो रही थी उसके ऊपर हमने फी रेगुलेशन, अब तो एक्ट है, और उसके बाद एक कमिटी बनी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज भी उस कमिटी में मेंबर है, टू फिक्स द फीस ऑफ द स्कूल। स्कूल को कितनी फीस चार्ज करनी चाहिए, और उस पैरामीटर्स को एक्चुअली उन्होंने एक्ट में डाला आफ्टर आरटीआई रिवील्ड कि आपका बच्चा अगर एक्स स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी फीस है 50,000, वाई में पढ़ रहा है तो उसकी फीस है 5 लाख। सो ये इतना बड़ा वेरिएंस क्यों? और इसको बहुत स्टिफ ऑपोजिशन हुआ प्राइवेट स्कूल से, और उसके बाद अल्टीमेटली बिकॉज दे वर बीइंग फंडेड इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, so they said that nothing doing, ये act रहेगा, and then that act was challenged also and upheld also. So again, even if somebody is private, आप उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से निकाल सकते हो जो कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का रेगुलेटर है। सो स्कूल के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट रेगुलेटर होगा, कोई कंपनी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, उसका आरओसी या सेबी होगा। सो हम लोग आगे केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे कि अभी सेबी और लिस्टेड कंपनी का कैसे निकालते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेट्स से मैं हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ और मुझे मेरी सोसाइटी वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आरटीआई में रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगा सकता हूँ। रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन कॉल करके वो मुझे प्रोवाइड कर सकता है। मेरी सोसाइटी मुझे डिनाई कर दे, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रार को उनको देनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रार अंडर आरटीआई हमको वो देने के लिए लायबल है। सिमिलरली ट्रस्ट में चैरिटी कमिश्नर से हम डिटेल्स निकाल सकते हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है। दैट्स वेरी जनरल। ये मैंने खैर आरबीआई वाला एग्जांपल ले लिया है, तीनों जो पॉइंट्स है आरबीआई के उस ऑर्डर में ही है। फॉरेन डेरिवेटिव्स, राइट ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर, एनुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट,
ऑल दीज आर इन दैट आरटीआई जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. काफी बार हम देखते हैं कि हमारा क्लाइंट का अकाउंट हो गया एनपीए. अब हम लोग as a borrower, to represent the borrower, we would like to give an one time settlement plan. या वन टाइम सेटलमेंट में हम जाना चाहते हैं, हेयर कट बैंक लेना चाहती है. अभी हाउ टू गिव एन ओटीएस, हमको ये नहीं पता कि ये बैंक का पैरामीटर क्या है और कितने पे ओटीएस एक्सेप्ट करेगा. या पर्टिकुलर हमारा क्लाइंट लेट से एमएसएमई है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, वी डोंट नो कि पैरामीटर्स क्या है. आपको कभी भी नॉर्मली बैंक ब्रांच बताएगी नहीं कि पैरामीटर्स क्या है. तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड फाइल आरटीआई आस्किंग द ओटीएस स्कीम पॉलिसी एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक. आपको आरटीआई में ओटीएस स्कीम की डिटेल मिल जाएगी इन ब्लैक एंड व्हाइट. उसके बाद आप अपना प्रपोजल प्लान कर सकते हैं व्हाट टू गिव टू द बैंक. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. सेकेंडली, अभी कोविड के अंदर व्हाट वाज हैपनिंग, खैर ये ऑल ओवर इंडिया हुआ. हॉस्पिटल्स वर नॉट डिस्क्लोजिंग ऑक्सीजन बेड कितने हैं, नॉन ऑक्सीजन बेड कितने हैं, कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन हैं. ये सारी डिटेल अंडर आरटीआई हैज टू बी गिवन, बिकॉज ये सारी डिटेल होनी ही चाहिए. और ये सारी डिटेल इवन प्राइवेट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, सबको देनी पड़ेगी. और आरटीआई में डिटेल जब आई तब पता पड़ा कि दे वर अपडेटिंग ओनली 2 times in 24 hours. फिर हम यहाँ गुजरात हाईकोर्ट में डायरेक्शन हुआ और उसके बाद इसको रियल टाइम बेसिस पे कर दिया. सो हो सकता है कि हमको रिलीफ कोर्ट में जाके मिले, लेकिन उस रिलीफ के लिए पहले हमको आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन कोलेट करने की जरूरत है. सेकेंड बिग स्कैम, इट वॉज देयर इन मीडिया ऑल्सो, कि कोविड डेथ्स जो गवर्नमेंट बता रही है और जो डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है उसमें ह्यूज वेरिएंस है. इधर डेथ बताई है कोविड की लेट से 5000 जब पीक पे था, अभी जब सेकेंड वेव आई, और दूसरी तरफ जब पता पड़ रहा है कि 1 लाख से ऊपर डेथ्स हो चुकी है. सो डेथ सर्टिफिकेट ज्यादा है, कोविड डेथ्स कम है. इस डिसप्रोपोर्शनेट रीजन का क्या रीजन है? क्योंकि अगर उसको मेडिकेशन आपने कोविड का दिया है तो आप नॉन कोविड डेथ कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? सो ये काफी मीडिया में भी रहा था. दिस वाज अगेन अनलिस्ड हियर इन द स्टेट ऑफ गुजरात. अगेन ये तो खैर काफी फेमस केस है. सेलिब्रिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल गए, आरटीआई में पता पड़ता है. काफी सालों से केसेस चल रहे हैं और बाद में पता पड़ता है कि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है. सो ये कहीं ना कहीं आरटीआई लगाने से इंफॉर्मेशन पब्लिकली हमको पता पड़ती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वेयर द डॉक्यूमेंट्स आर लैप्स्ड. और किसी ने सही टाइम पे आरटीआई लगा के डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए तो ही कैन प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स टू द कोर्ट, अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट बोलता है कि जल गए. दिल्ली का तो केस सबको ही पता है, काफी मीडिया में भी रहा था कि व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय द गवर्नमेंट. सो 150 करोड़ उन्होंने स्पेंड कर दिया, 800 करोड़ उन्होंने 2 साल में कर दिया. सो ये सब चलता रहता है जो कि आरटीआई में चेक रहता है, क्योंकि जब ये चेक्स रहेंगे तभी जो भी गवर्नमेंट है दे विल वर्क प्रॉपरली, अदरवाइज देयर इज नोबडी टू चेक देम. ये इंफॉर्मेशन जो हम आरटीआई में लेते हैं, क्या हम इसको कोर्ट में यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस. एनी इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई is admissible as a piece of evidence in the court of law. तो कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एविडेंस आप इजीली ले सकते हो. एविडेंस लेने के लिए आरटीआई लगाई और रिप्लाई आया, दैट इज सफिशिएंट. इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो पब्लिक अथॉरिटी क्या है, कहां पे आरटीआई हम लगा सकते हैं? सो हम लोग आरटीआई लगा सकते हैं in any department, in any authority, in any body which is either born under constitution or it is made by an act of parliament like our C institute, CS institute, और state legislature. काफी बार state अलग अलग department, corporation को बनाएगी, वो सारी आ जाएंगी. और any notification by government कि yes I am making this institution, that is also covered under RTI. अब इसमें एक छोटा सा प्रोविजन उन्होंने डाला है, या आई वुड से अ क्लैरिफिकेशन डाला है. इट सेज बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस. ये बहुत कैची वर्ड है तीनों. बॉडी ओन्ड, इसका मतलब शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट. कंट्रोल्ड, अगर पैसा नहीं लगा गवर्नमेंट का लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का है, तो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चेयरमैन है, एमडी है,
वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या गवर्नमेंट के पास पावर है, और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। तो अब सब्सटेंशियली फाइनेंस वी विल डिस्कस सम केस लॉ, कहाँ कौन से फाइनेंस को आप कवर करके उस पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी पब्लिक अथॉरिटी में ला सकते हैं। सो हम लोग इसमें एग्जांपल्स लेंगे, बट जस्ट टू कीप इन माइंड देयर आर थ्री वर्ड्स, ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस। सेकंड क्लॉज इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। ऐसे बहुत सारे एनजीओ है जिनको गवर्नमेंट पैसा देती है, तो वो भी सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगे पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स, ऐसा कब कब हो सकता है? Substantially financed by state government directly or indirectly by way of giving salary to the teacher, then this particular school will be called as public authority. So अगर स्कूल है, अगर यूनिवर्सिटी है, अगर प्राइवेट एडेड कॉलेज भी है और सैलरी गवर्नमेंट दे रहा है, तो देन इट इज अंडर अ पब्लिक अथॉरिटी, और आरटीआई में वो इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल है, दे कैन नॉट डिनाई। हमने एक क्लॉज पढ़ा था अभी, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। सब्सटेंशियली फाइनेंस का मीनिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है डीएवी कॉलेज जजमेंट में। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि 50% ही फाइनेंस होना चाहिए। सब्सटेंशियल का मतलब 50% नहीं है। इवन वन सेगमेंट, लेट्स से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस नहीं किया गवर्नमेंट ने, बट सैलरी के लिए फाइनेंस कर दिया, इवन देन दैट इंस्टीट्यूशन बिकम्स पब्लिक अथॉरिटी। जरूरी नहीं है कि पूरा फाइनेंस हो, कोई पर्टिकुलर लिम भी फाइनेंस कर दिया अगर गवर्नमेंट ने, इट बिकम्स अकाउंटेबल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से यूनिवर्सिटी, इंडिया में देयर आर टू कॉन्सेप्ट, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सो कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर पब्लिक अथॉरिटी। उसके ऊपर कोई तरीके का आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, दे ऑल आर कंसिडर्ड टू बी पब्लिक अथॉरिटी, और कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई डिनाई नहीं कर सकती। So ये this is very very clear. Now interestingly जो हमने तीन वर्ड्स पढ़े थे, owned, controlled और substantially financed, ये तीनों वर्ड का इंटरप्ले इस जजमेंट में है। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। कंपनी का नाम है गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड। नाउ इंटरेस्टिंगली इसमें क्या हुआ कि जब कंपनी बनी थी स्टार्टिंग में, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट किया था स्टार्टअप्स को या न्यू बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में क्लॉज रखा। क्या क्लॉज बोलता है? को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीआईआईसी लिमिटेड, दैट इज गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, जो गवर्नमेंट कंपनी थी, उसी कंपनी का जो चेयरमैन होगा वो इस कंपनी का एमडी होगा। सो अगर मैं जीआईआईसी का चेयरमैन हूं तो मैं जीवीएफएल का एमडी बन जाऊंगा। नाउ यू सी, बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज हमारा सेकंड पॉइंट ट्रिगर होता है, कंट्रोल विद द गवर्नमेंट। फर्स्ट क्लॉज वाज ओनरशिप, इस केस में ओनरशिप नहीं थी। ओनरशिप तो स्टार्टिंग में थी 80-70%, आज की डेट में ओनरशिप 20% के आसपास है, लेकिन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि इट्स अ पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। भले ही सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं है गवर्नमेंट से, भले ही ओनरशिप नहीं है, स्टिल इट इज अंडर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द क्लॉज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी विल हैव टू सी कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास नहीं चला गया। अगर चला गया है तो इट इज कवर्ड अंडर आरटीआई। नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सब लोग पब्लिक अथॉरिटी में बाय डिफॉल्ट आते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, म्युनिसिपल बॉडीज, पंचायत सिस्टम, एवरीथिंग इज अंडर पब्लिक अथॉरिटी। कोर्ट्स, जुडिशरी भी आरटीआई में है, लेकिन आप आरटीआई में ये नहीं पूछ सकते कि ये जजमेंट क्यों लिया। आप ये पूछ सकते हो कि ये केस की नेक्स्ट डेट क्या थी, ये केस कितने टाइम से पेंडिंग है, कितने केस डिस्पोज हुए, कितने केसेस में बेल हुई, आप ये पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछ सकते कि जज ने ये डिसीजन क्यों लिया है। सो वहां पे आरटीआई का एक रेस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आरटीआई के अंदर फॉल होता है,
and it is an department which is also a public authority for the purpose of RTI. अब हम RTI में क्या नहीं मांग सकते? सपोज सर्च हो रही है, रेड हो रही है, सीजर हो रहा है इनकम टैक्स में, जीएसटी में कहीं पे, तो क्या हम RTI लगा के मांग सकते हैं कि किसने ये इंफॉर्मेशन दी थी डिपार्टमेंट को? नहीं मांग सकते। क्या हम ये मांग सकते हैं कि ईडी की अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो कैसे हुई, कैसे ओरिजिनेट हुई? नहीं मांग सकते। लेकिन क्या हम ऐसा मांग सकते हैं कि सपोज अगर कहीं सर्च सीजर हुआ तो वो एसएससी ये मांग सकता है आरटीआई में कि अगर सपोज इसमें प्रिंसिपल कमिश्नर का लेट से अप्रूवल चाहिए कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, तो क्या वो अप्रूवल लिया गया? यस, यू कैन आस्क दैट थिंग अंडर आरटीआई। सो कुछ चीजें एग्जेम्प्ट है, कुछ चीजें आरटीआई में फॉल होती है, और कुछ डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट है। तो ये जो लिस्ट है ये उन डिपार्टमेंट की है जो बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट है। तो इसमें डीआरआई है, ईडी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, डिफेंस से रिलेटेड ब्रॉडली सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आरटीआई है, या आई वुड से कि ये लोग इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं आरटीआई में। नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन भी आरटीआई एक्ट में क्लियरली समझाया गया है। व्हाट इज इट? इट इज इफ वी वांट टू इंस्पेक्ट अंडर आरटीआई द इंफॉर्मेशन, नाउ इंफॉर्मेशन इज मे बी अ डॉक्यूमेंट, मे बी अ रिकॉर्ड। अब इंस्पेक्शन में और गेटिंग अ कॉपी में डिफरेंस है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि मैंने आरटीआई लगाई और मैंने बोला मुझे इंस्पेक्शन के लिए बताइए। जस्ट लाइक हम कंपनी के मिनट बुक देख सकते हैं, एसेट रजिस्टर जाके देख सकते हैं, वैसे आरटीआई में सपोज कोई बल्कि डॉक्यूमेंट है 1000 पेज का, मुझे 1000 पेज नहीं चाहिए, तो मैं इंस्पेक्शन मांग लूंगा। तो इंस्पेक्शन में मैं जाके उस फाइल को देख सकता हूँ और उस फाइल में से पिक कर सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरी फाइल को कॉपी करवाने की जरूरत नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इंस्पेक्शन। यू हैव अ राइट टू गो एंड इंस्पेक्ट द फाइल ऑल्सो। टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट, उसमें से अगर आपको कुछ कॉपी करना है, कुछ लिखना है, आप देख के लिख सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। सर्टिफाइड सैंपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन नाउ ऑन वीडियो टेप्स, कैसेट्स, फ्लॉपीज, ये सब आजकल बहुत इजी हो गया। आजकल तो इंफॉर्मेशन ही बाय ईमेल पीडीएफ बन के आ जाती है। सो दैट इज वेरी आई वुड से इजी। नाउ आरटीआई किस लैंग्वेज में लगेगी? सी, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो कुछ कुछ स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट में पावर यूज करके खुद के रूल्स नोटिफाई किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में आरटीआई के रूल्स बोलते हैं कि गुजराती लैंग्वेज में आप आरटीआई लगा सकते हो। सो आप इंग्लिश में भी लगा सकते हो, हिंदी में भी लगा सकते हो और गुजराती में भी लगा सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट वो लोकल लैंग्वेज को भी अलाउ कर देते हैं। ऑनलाइन लगा सकते हो, ऑफलाइन लगा सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे ऑनलाइन कवर्ड है। आपको आरबीआई में आरटीआई लगानी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लास्ट में देखेंगे ऑनलाइन आरटीआई आप फाइल कर सकते हो। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आरटीआई लगानी है, सिंपल, आप अपने घर से लगा सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट है, रिप्लाई भी ऑनलाइन आ जाएगा, एसएमएस पे आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, वेरी इजी। क्या मुझे रीजन देने की जरूरत है अगर मैं आरटीआई कर रहा हूं तो? कोई जरूरत नहीं है रीजन देने की। दे विल नॉट आस्क यू एनी रीजन व्हाई डू यू वांट द इंफॉर्मेशन। अगर हमको पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आरटीआई का ऑफिसर कौन है, तो हम एप्लीकेशन किसको लगाएंगे? वेरी सिंपल, आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लिख के डिपार्टमेंट का नाम और एड्रेस लिख दीजिए। इट इज देयर हेडेक टू ट्रांसफर इट टू द रेलेवेंट ऑफिसर। आपको उसके अंदर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी। whatever information you are seeking, you have to specifically write that information। वो मैं आगे कुछ एग्जांपल्स लूंगा, how to draft that particular requisition for information। अगर हमने सपोज एक्स डिपार्टमेंट में लगाई और वो इंफॉर्मेशन वाई डिपार्टमेंट में है, तो वो एक्स टू वाई का ट्रांसफर जो है वो उनका इंटरनल डिपार्टमेंट लुकआउट है, हमको उसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन की फी 10 रुपीज और 20 रुपीज तक कर सकते हैं। नॉर्मली स्टेट्स ने 20 रुपीज कर रखी है, एक एप्लीकेशन की फीस की वैल्यू है ये। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक एप्लीकेशन में मैं 10 इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं कि 100 मांग सकता हूं, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस ने रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए थे, सेइंग दैट कि आप 300 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं कर सकते,
आप 10 इंफॉर्मेशन से ज्यादा नहीं मांग सकते। वो सब हाईकोर्ट जाके सब जगह क्वैश हो गए और क्लियर हो गया कि यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन एप्लीकेशन. नाउ इट इज ऑन यू हाउ टू ड्राफ्ट योर एप्लीकेशन एंड हाउ टू फाइल द एप्लीकेशन. Then there are two types of prices. आपको इंस्पेक्शन के लिए फर्स्ट 30 मिनट्स कोई फी नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर बल्कि रिकॉर्ड है तो आप पहले 30 मिनट फ्री में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं. आफ्टर 30 मिनट 20 रुपीज पर हाफ एन आवर दे विल चार्ज यू. अगर आप सीडी पे कॉपी करके मांगते हैं तो 50 रुपीज इज द चार्ज. नाउ ये सब चार्जेस उन्होंने लिखे हुए हैं, इस चार्जेस में कोई प्लस माइनस नहीं कर सकते. और आजकल इजी है, कैश, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं. पहले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस था, अब तो दे आर एक्सेप्टिंग एनी विच वेज यू आर पेइंग द अमाउंट फॉर आरटीआई. अब सपोज आरटीआई की इंफॉर्मेशन उन्होंने हमको नहीं दी विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज, तो क्या करें? सी प्रैक्टिकली स्पीकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो फिर भी 30 डेज में दे देते हैं. बियॉन्ड 30 डेज अगर वो इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो फ्री हो गई. आपने जो पैसा लगाया था एप्लीकेशन के साथ वो पैसा वापस मांग सकते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट बिकम्स फ्री. जनरली हम लोग मांगते नहीं है, 10 रुपए क्या मांगेंगे ऐसा हम लोग सोचते हैं, बट एज पर लॉ दैट इज फ्री. सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई ऑलवेज से दैट आरटीआई एप्लीकेशन में अगर आप सेक्शन 7 ऑफ आरटीआई एक्ट का फर्स्ट प्रोविजो जोड़ दो तो आपका काम फास्ट होगा. What does it say? कि अगर ये इंफॉर्मेशन लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है तो ये इंफॉर्मेशन 48 घंटे में पीआईओ को आपको देनी है. सो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज ऑब्लाइज्ड टू गिव यू इंफॉर्मेशन विद इन 48 आवर्स. सो अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो 30 दिन का टाइम शॉर्ट होके 2 दिन हो गया. बट अगेन लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब उसको सोचना है कि लाइफ एंड लिबर्टी हिट होगी कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोविड के अंदर लगाने गया आरटीआई कि मुझे आप इंफॉर्मेशन दो कि कितने बेड ऑक्सीजन के, कितने नॉन ऑक्सीजन के, तो ही हैज टू गिव विद इन 48 आवर्स. उसके पास टाइम नहीं है कि मैं 30 दिन बाद दूंगा. लाइफ एंड लिबर्टी हिट हो गई. अब इसके अंदर एक कैच ये है कि लाइफ एंड लिबर्टी हिट हो रही है, ये उसको प्रूव करना है कि नहीं हो रही है. हमने तो हमारी एप्लीकेशन में लिख दिया. सो दिस इज अ ट्रिक that will create some pressure to give the information faster. So obviously I always suggest कि आप ये ऐड कर दो क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लिबरली इंटरप्रेट किया है. सो दिस इज यूजफुल फॉर अस. अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है 30 डेज में लॉफुली सेइंग, उसमें आप अपील कर सकते हो 31st डे. लेकिन हम नॉर्मली करेंगे नहीं. हम नॉर्मली एक रिमाइंडर देंगे कि 30 डेज हो गए क्यों नहीं आई. क्योंकि क्या होता है काफी बार हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर चली गई तो उसमें उनको 7 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा. तो कभी कभी 30 दिन के बियॉन्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है. बट येस, लीगली स्पीकिंग यू हैव अ राइट टू अपील इफ नो इंफॉर्मेशन कम्स विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज. अब इंफॉर्मेशन जो एक्सक्लूडेड है, जिसको नहीं मांग सकते, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इंडिया की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, कुछ डिफेंस, ऐसी कोई थ्रेट है, या किसी लॉफुली किसी ने बोल दिया ये इंफॉर्मेशन आप पब्लिकली नहीं दे सकते, तो ये सारी चीजें सीक्रेट रहेगी. सो आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम ऑन दिस. ये तो एक्सक्लूडेड है. फर्स्ट अपील हमारी कहाँ होगी? जब इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. तो जिस डिपार्टमेंट में हमने इंफॉर्मेशन अप्लाई करी है उसकी फर्स्ट अपील उसी डिपार्टमेंट के हाईएस्ट ऑफिसर के सामने होती है. ही इज कॉल्ड द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी. सो हम उसको FAA भी बोलते हैं शॉर्ट में. फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी इज द अथॉरिटी वेयर बाय अपील इज फाइल्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अंडर RTA if we are not satisfied, if information is not provided, if misleading information is provided, if they are taking more time to provide you information. क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी वो आपको रिप्लाई में बोलता है कि आपकी इंफॉर्मेशन में टाइम लगेगा, हमको 15 दिन और चाहिए. सो बेसिकली वो आपसे टाइम ले रहे हैं कि हम और इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करके आपको देंगे. सो फर्स्ट अपील इज दैट. सेकेंड अपील इज 90 days फ्रॉम द डेट व्हेन ऑर्डर इज पास बाय फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी. तो अभी ये 90 days के अंदर यू विल हैव टू गो टू SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर. स्टेट कब जाएंगे? जब स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो CIC. इसके ऊपर हम कहाँ जाएंगे?
अब इसके ऊपर हम एज पर आरटीआई एक्ट कहीं नहीं जा सकते, एक्ट के अंदर कोई रेमेडी नहीं है। तो अभी जब रेमेडी एक्ट में नहीं है तो हम जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वी विल इन्वोक 2 आर्टिकल्स। अगर हाईकोर्ट जाना है तो आप जाइए 226 में, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप जाइए आर्टिकल 32 में। दोनों ही रेमेडीज आपको अवेलेबल है, हाईकोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, बट दोज आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, नॉट स्टैट्यूटरी रेमेडी अंडर आरटीआई एक्ट। अब प्रैक्टिकली कहा जाना चाहिए? सो ऑलवेज द सजेशन इज टेक अ चांस बिफोर हाई कोर्ट, देन गो टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली इंक्लाइन नहीं होता है अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाके आए हैं तो। बट हाँ, जैसे कुछ केसेस में जो एक्सीजेंसी वाले थे, अभी कोविड के केसेस थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले ली। अब वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डेज में आपको अपील करनी है एसआईसी में। अज्यूम करिए कि यू फॉरगॉट टू डू द अपील विद इन 90 डेज, तो क्या आपका राइट टू अपील खत्म हो गया? सो आंसर इज, आरटीआई एक्ट में 2 टाइम पीरियड लिखा है अपील का, बट एक्चुअली वो टाइम पीरियड इफेक्टिव नहीं है। क्यों? देयर इज नो प्रोहिबिशन अंडर आरटीआई एक्ट कि आप वापस इंफॉर्मेशन मांग लो। आप कोई भी इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ टाइम्स मांग सकते हो। सो अगर सपोज मैं भूल गया अपील करना, तो व्हाट शुड आई डू? मैं वापस से आरटीआई लगा दूंगा, वापस से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वापस से अपील कर सकता हूं। सो देयर इज नो एंड टू इट। In my opinion, this appellate time is only a formality. As such, there is no time period if you see it from a different angle. अब अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो what can be the best penalty for him? So it could be 25,000 rupees. Best or highest amount that could be penalized or cost can be imposed on the public information officer. तो उसकी सैलरी में से जाएगा, उस डिपार्टमेंट पे नहीं करेगा। Therefore, RTA Act is a serious law. उसकी सैलरी में से कटेगा, तभी उसको पता पड़ेगा कि RTA एक्ट में उसने कंप्लायंस नहीं करी, तो ये सीरियस ऑफेंस है। और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी कोर्ट डायरेक्शन दे देता है। मैं आगे एक जजमेंट डिस्कस करूंगा, उन्होंने हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। सो ये हमारे डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर यूज आ सकता है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों से काफी क्लाइंट्स पूछते हैं कि सर हमारा रिफंड नहीं आया, क्या करें? यू हैव वेरी गुड एंड बेस्ट वे टू गेट इट। कुछ नहीं, 10 रुपीज में एक आरटीआई लगाइए, प्लीज प्रोवाइड मी स्टेटस ऑफ रिफंड ऑफ पैन नंबर सो एंड सो फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। आप ये नहीं पूछ सकते कि मेरा रिफंड क्यों नहीं आया, आप ये पूछेंगे कि मेरे रिफंड का स्टेटस क्या है। तो रिफंड का आपने जैसे स्टेटस पूछा, आपका रिफंड प्रोसेस होकर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। ये सर्च सीजर वाला एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। अगर हमको कहीं पे भी डाउट है, जैसे फॉर एग्जांपल काफी बार मैंने देखा है, हम गए, हमारी हियरिंग हुई, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसने ऑर्डर शीट में लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि ये लोग कोई देते तो है नहीं ऑर्डर शीट के, ये तारीख को ये ऑर्डर्स हुए। आप आरटीआई में वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। आप आरटीआई में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, व्हाई, व्हेन, व्हाट। यू कैन आस्क, प्लीज प्रोवाइड मी डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सो एंड सो, प्लीज प्रोवाइड मी स्टेटस रिलेटिंग टू सो एंड सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या मैं अपने क्लाइंट के बेसिस पे आरटीआई लगा सकता हूं? आंसर इज नो। आप अपने क्लाइंट के नाम से आरटीआई लगा दो ना, आजकल तो ऑनलाइन लगती है। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट का ईमेल आईडी और फोन नंबर ही डालना है, उससे ओटीपी लेके ऑनलाइन ही तो फाइल करनी है। सो यस, लीगली स्पीकिंग क्लाइंट विल फाइल हिज ओन आरटीआई, बट यू कैन असिस्ट हिम इन फाइलिंग द सेम। एक क्वेश्चन काफी बार आता है कि हम लोग आरटीआई में गए इंस्पेक्शन लेने, तो क्या हम फाइल की फोटो खींच सकते हैं? आजकल सबके पास मोबाइल है, फोटो खींच लेते हैं। यस, दैट इज वैलिड। Now judgments are there कि photographs can be taken from your mobile camera and that is valid under RTI। अगर आपने फोटो ली है तो that is also admissible। मैंने कुछ citations भी दिए हैं यहाँ पे, that could be useful for you। Yes, photos of documents can be taken। Now comes very interesting point, क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकता हूँ? क्या मैं अग्रवाल जी का आरटीआई में रिटर्न मांग लूँ? मुझे पता करना है राजेश जी कितना कमा रहे हैं। सो नहीं मांग सकता। क्यों? कि मैं थर्ड पार्टी हूँ।
आई एम अ थर्ड पार्टी, तो मैं थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन वो नहीं देंगे। आप कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल आस्क आपको क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन, सो वो आपको मना कर देंगे। सो गिरीश देश पांडे का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जहां उन्होंने इलेबोरेटली डिस्कस किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, नहीं डिस्क्लोज हो सकती। पर क्या अग्रवाल जी मांग सकते हैं खुद के रिटर्न की डिटेल? यस, क्योंकि वो थर्ड पार्टी नहीं है, वो खुद की डिटेल खुद मांग सकते हैं। इसी लॉजिक से तो वो इनकम टैक्स रिफंड की डिटेल मांग रहे हैं। आप जब एसएससी की तरफ से मांग रहे हो तो एसएससी खुद की डिटेल तो मांग ही सकता है, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्टी को डिटेल डिनाइड है। अब इसमें ट्विस्ट है, गिरीश देश पांडे जजमेंट बोलता है सुप्रीम कोर्ट का कि रिटर्न की डिटेल थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। अब हस्बैंड वाइफ में चल रही है लड़ाई, डाइवोर्स पिटीशन फाइल्ड है, मेंटेनेंस पिटीशन फाइल्ड है, तो क्या वाइफ हस्बैंड की इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल मांग सकती है? सो पहले व्यू ये था कि नहीं मांग सकती है, बट अब व्यू ये आ गया है कि मांग सकती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये अभी रिसेंट जजमेंट ही है राहत बानो का। इंटरेस्टिंगली मैं इन्वॉल्व था इस मैटर में। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि आप ये डिटेल दोगे लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी नहीं दोगे। आप क्या दोगे? जो ग्रॉस इनकम है, जो नेट इनकम है डिडक्शंस के पहले बाद में, वो आप दे सकते हो। आप क्यों दे सकते हो? बिकॉज दीज डिटेल्स आर रिक्वायर्ड बाय द वाइफ टू फाइल एन अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस अंडर दैट मैट्रिमोनियल लॉ। तो मैट्रिमोनियल लॉ में अगर उसको इनकम टैक्स की डिटेल चाहिए तो वो मांग सकती है। अब इसी बेसिस पे सुनीता विरमानी का जजमेंट है जिसमें उसने जीएसटी रिटर्न की डिटेल मांग ली, क्योंकि इनकम टैक्स मांगेंगे तो जीएसटी भी मांगेंगे। तो आंसर इज यस, अगेन ग्रॉस फिगर्स नेट फिगर्स कैन बी डिस्क्लोज विजा विज हर हस्बैंड। अब किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि साहब जीएसटी रिटर्न में मान लो उसके पार्टनर्स भी साथ में हैं, तो वो डिटेल फिर क्या पार्टनर की भी आ जाएगी या उसका अपॉर्शनमेंट आएगा? तो अभी तक ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है, बट टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग हर हस्बैंड अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उस पार्टनर का जितना जो शेयर बनेगा उसकी डिटेल डिस्क्लोजेबल है, अदरवाइज सारी डिटेल डिस्क्लोजेबल नहीं है। अब इसी को हम थोड़ा सा और लंबा करते हैं, क्योंकि ये तो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था। अब फादर सन का डिस्प्यूट हो जाए या मदर सन का डिस्प्यूट हो जाए तो क्या ये लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एल्डरली के लिए भी मेंटेनेंस का लॉ है, तो मेंटेनेंस का लॉ तो सबके लिए बराबर ही होगा। अगर वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है तो फादर या मदर भी बच्चे से मेंटेनेंस ले सकते हैं। So therefore, requirement under one law will force under RTI to give the information. Correct? So this is my extended interpretation कि elderly भी मेंटेनेंस के लिए इनकम टैक्स की डिटेल, जीएसटी की डिटेल मांग सकते हैं। ना ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो लाइव हम लोगों ने एग्जाम्पल्स आरटीआई जो हमने लगाई उसके लिए हैं, कुछ कोलेट किए मैंने। ये रिसेंट केस है कि सभी जगह ये था कि आपको वर्चुअल हियरिंग करनी है और यहाँ पे रेरा अथॉरिटी में उन्होंने फिजिकल हियरिंग चालू कर दी थी। वो मैटर्स के लिए हमको फिजिकली बुलाने लगे। तो मैंने बोला सर आप फिजिकली कैसे बुला रहे हो? हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपको फिजिकली नहीं बुलाना है और जरूरत ही नहीं है इस मैटर में फिजिकली बुलाने की, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मैटर है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, इनकम टैक्स में भी हो सकता है, जीएसटी में भी हो सकता है। हमारे केस में ये गुजरात में रेरा में हुआ था। तो हमने एक आरटीआई लगाई, प्लीज प्रोवाइड मी, ये मैं ड्राफ्टिंग बताने के लिए सैंपल लिया है मैंने, प्लीज प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन और ऑर्डर रिलेटिंग टू डायरेक्शन इश्यूड बाय सो एंड सो अथॉरिटी टू रिमेन फिजिकली प्रेजेंट फ्रॉम दिस पीरियड, बिकॉज इस पीरियड के अंदर मना किया था हाई कोर्ट ने। तो उन्होंने राइटिंग में रिप्लाई दिया है कि हमने वर्बली इंस्ट्रक्ट किया था फिजिकल आने का। आप समझिए ये जो भी रिप्लाई आरटीआई में देते हैं वो सारा मैटर कोर्ट में हम बाद में लेके गए। सेकेंडली, आपने कितने मैटर में फिजिकल हियरिंग करी? सी इन्होंने लिख के दिया हमने 19 मैटर में फिजिकल हियरिंग करी। थर्ड, आप डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का आपने क्या किया। सो व्हाट वी हैव रिटन इज प्लीज प्रोवाइड द स्टेप्स टेकन टू कंप्लाई विद पैरा नंबर सो एंड सो of high court order in so and so matter. So indirectly you are saying कि what is the compliance of high court order?
आप मानेंगे ये इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद हमने PIL लगाई, 21 को PIL लगाई हाई कोर्ट में, मैटर लिस्ट नहीं हुआ, 21 को केवल फाइल हुआ था, 24 को उन्होंने विड्रॉ कर लिया फिजिकल हियरिंग का सर्कुलर, 3 दिन के अंदर विड्रॉ कर लिया, because they understood कि if this matter goes there, probably since every court is functioning virtually, what is the requirement of calling physically? So what I'm trying to say is, if you want to get information under RTI, you can use it maybe under writ petition or PIL by going before High Court. Then कुछ केसेस में मैंने देखा है, काफी बार हम लोग एज अ प्रैक्टिशनर और एज एन एडवाइजर वी गेट फ्रस्ट्रेटेड. व्हाई डू वी गेट फ्रस्ट्रेटेड? वी गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज कि हमको ऐसा लगता है कि यार हमारी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो रही है, हमारे क्लाइंट की एप्लीकेशन क्यों प्रोसेस नहीं हो रही है. तो आप आरटीआई में मांग सकते हैं कितने लोगों ने एक पर्टिकुलर चीज के लिए एप्लीकेशन लगाई, कितने में एप्लीकेशन अलाउ हुई, कितने में एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, कितने में रीजंस क्या थे रिजेक्शन के. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ये पता हो कि क्या रीजंस फॉर रिजेक्शन है या रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस है, उसके हिसाब से आप अपना काउंटर तैयार कर सकते हो. सो ये जैसे हम लोगों ने लगाई थी कि कितने प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन अप्रूव हुई, कितने की रिजेक्ट हुई, कितने के अंदर उन्होंने अलाउ कर दिया. सो ये पूरा डेटा हमारे पास आ गया. अब हम ये पता कर सकते थे कि हमारे पर्टिकुलर क्लाइंट में रिजेक्शन क्यों हुआ. उसके बाद हमने आरटीआई लगाई और पूरी फाइल की कॉपी मांग ली. एज आई टोल्ड यू, फाइल डॉक्यूमेंट्स विद फाइल नोटिंग्स. तो वंस फाइल नोटिंग्स आ गई, हमको ये पता पड़ गया कि वो एप्लीकेशन में क्या क्या नॉन कंप्लायंस है जो हमको रेक्टिफाई करने हैं, या फिर उस पर्टिकुलर इश्यू में क्या ऐसा पॉइंट है जो कि डिपार्टमेंट क्लियर नहीं कर रहा है. सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स वी कैन एक्चुअली वर्क आउट थ्रू आरटीआई. सो द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको अगर ये पता है कि फाइल नोटिंग्स हमको आरटीआई में मिल सकती है, आप अपना काउंटर तैयार कर सकते हैं. दूसरा, जैसा एक एग्जाम्पल मैंने बोला, आप फोटोग्राफ ले सकते हैं. फोटोग्राफ आप लेंगे तो क्या मैं उसको दूसरे कोर्ट में यूज कर सकता हूं? सी, लीगली स्पीकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अगर आप कहीं कोर्ट में रखेंगे तो बोलेंगे सर्टिफाइड नहीं है. तो अच्छा ये रहेगा कि आप पीआईओ से सर्टिफाइड कॉपी ही लो. जो इंफॉर्मेशन आप आरटीआई में रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका साइन सील सिक्का रहेगा, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट केस, और आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो कि काफी सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि यू शुड एक्चुअली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर जजमेंट. ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दो तो सेकेंड टाइम रीट्रेट किया है. व्हाट इज दिस जजमेंट? दिस जजमेंट सेज every investigating office, maybe it is police, maybe it is CBI, maybe it is ED, DRI, SFIO, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है टू इंस्टॉल सीसीटीवी. अब सीसीटीवी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिख रहा है, ऑडियो और वीडियो दोनों ही फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए. और ऑडियो वीडियो फैसिलिटी के साथ प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो 18 महीने तक उनको प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड रखनी है. ये क्लियर कट परमवीर सिंह का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और ये सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे लागू है. मैंने काफी जगह देखा है, इनकम टैक्स के अंदर इंटेरोगेशन हो रहा है, जीएसटी में इंटेरोगेशन हो रहा है, वो आपसे स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं, क्योंकि आपका एडवोकेट तो आपके साथ बैठ नहीं सकता. तो वहां पे काफी बार अभी केसेस आए. इनफैक्ट रिसेंटली एक केस हम भी कर रहे हैं गुजरात में. वहां पे उसको अब्यूज किया, उसको फिजिकली मारा, वो ऊपर से कूद गया, सुसाइड का अटेम्प्ट किया, उसकी टांग टूट गई. तो ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं. सो पॉइंट इज कि अगर ये पर्टिकुलर जजमेंट है और सीसीटीवी की वहां पे फैसिलिटी नहीं दे रखी है, तो आप आरटीआई में मांग सकते हो कि सीसीटीवी की फुटेज की कॉपी मुझे दी जाए. और अगर वो नहीं दी जाती है तो आप उसको हाई कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंप्लाई नहीं किया है. इसलिए मेरा जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो अंडर कोएर्जन है, वो अंडर इन्फ्लुएंस है, वो अंडर फिजिकल अब्यूज है. आप ऐसा क्वेश्चन रेस कर सकते हो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो. ऑब्वियसली राजेश जी प्लीज. मेरा एक क्वेश्चन यहाँ है कि अभी आपने बताया कि ये आरटीआई एक्ट सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डीआरआई, एसएफआईओ पे एप्लीकेबल ही नहीं है. सर मैंने इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये बताया था
कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जो प्रोसीजर है उसको आप नहीं हैम्पर कर सकते। जैसे अगर मेरे यहाँ पे सीबीआई ने रेड की है तो सीबीआई को टिप किसने दी वो मैं आरटीआई में नहीं मांग सकता, पर मैं आरटीआई में ये तो मांग सकता हूं कि सीबीआई के सो एंड सो एड्रेस पे जहां मुझे बुलाया गया है, जहां मेरा बयान लिया जा रहा है, वहां पे ये पर्टिकुलर जजमेंट के हिसाब से सीसीटीवी है कि नहीं। अगर मेरा बयान रिकॉर्ड किया है तो मुझे उस सीसीटीवी की फुटेज लाके दो जिसमें ऑडियो और वीडियो फैसिलिटी हो, और अगर नहीं है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का कंटेम्प्ट हो गया। माय पॉइंट इज कि ये लोग जहां पे भी फिजिकल अब्यूज कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी एजेंसी, वो वायलेशन में है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के, अगर उन्होंने वहां पे ऑडियो वीडियो फैसिलिटी नहीं रखी है। सर सर हम आरटीआई फाइल ही कहाँ करेंगे? ये तो जितनी भी एजेंसी हैं, ना इनके यहाँ आरटीआई ऑफिसर है, ना इनके यहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटी है। आपकी आरटीआई ये लेंगे ही नहीं, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर आरटीआई। सर मैंने आपको समझाया, अगर सपोज कोई डिपार्टमेंट में आपको ऑफिसर नहीं पता है तो आपको क्या करना है। सेंट्रल फॉर गवर्नमेंट को एग्जाम्पल लेनी लेट्स से है। आप, नहीं नहीं नहीं, आपको पीआईओ के नाम से लिखना है, पब्लिक ओके इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लेट्स से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो एंड सो एड्रेस ऑफ दिल्ली। आप उसको रजिस्टर्ड एडी से भेजो। आपके पास ओके। एक्नॉलेजमेंट है, आपने आरटीआई लगाई, उसका जवाब हाउ नहीं आता है, आप कोर्ट में हाउ टू जाओ। पे, नहीं, हाउ टू पे फीस? सर आप पे ऑर्डर, ये जो पे ऑर्डर आता है, पोस्टल ऑर्डर जो आता है ना सर, 10 रुपए 10 वाला रुपए, वो लगा, वो लगा। हाँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस वाले अपने कहीं पे भी मिल जाता है, सो ये यू मिल कैन, जाता है, मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। बहुत इजीली अवेलेबल है। दूसरा केस और बहुत इंटरेस्टिंग केस, और सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो सीए के लिए काम में आया वो करेंगे हम डिस्कस। एक कैप्टन थे, ये भी अगेन दिल्ली का ही केस है, जो इंडियन एयरलाइंस में थे, फिर सॉरी एयर इंडिया में थे, फिर एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस में मर्ज हो गई। वो वहां पे कैप्टन थे, उनके कुछ ड्यूज पड़े थे और काफी सालों तक वो चक्कर लगाते रहे कि उनको पेमेंट नहीं हो रहा, किसी एक्स रीजन से, वाई रीजन से, जेड रीजन से। उन्होंने क्या किया, आरटीआई लगाई कि मेरा कितना पैसा बाकी है एज पर दी बुक्स ऑफ इंडियन अकाउंट। एयरलाइन, नॉट कि मैं कितना मांग रहा हूँ, हो सकता है मैं 500 रुपए मांग रहा हूँ, मेरे बुक्स में 200 ही बोल रहा हूँ। उसने बोला कि मेरे को आरटीआई में बताइए कि प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल्स ऑफ माई ऑफ कैप्टन सुबोध कुमार स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड। क्लियर है? आगे डिटेल कि आपकी सैलरी इतनी बाकी है, आपकी ग्रेचुटी इतनी बाकी है, आपकी फलाह इतनी बाकी है, वो सारी डिटेल को उसने यूज किया। लिटिगेशन तो अलग चल रहा है कोर्ट में, उससे हायर अमाउंट का दूसरे कोर्ट में उसने लेबर कोर्ट में लिटिगेशन चालू किया, लेकिन क्योंकि ये एक्नॉलेज हो गया कि इतना पैसा बाकी है, उसने कुछ नहीं किया, उसने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर दी एनसीएलटी में, एनसीएलटी दिल्ली में। और आप मानेंगे, जैसे एनसीएलटी दिल्ली ने उसके ऊपर नोटिस निकाला, गवर्नमेंट ने उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर दिया। आई थिंक नॉट मोर देन 1 मंथ में उसका पूरा पेमेंट हो गया। तो जो चीज नॉर्मली आपको नहीं मिलती है वो चीज आप आरटीआई से कर सकते हैं। अब इसका अदर वे राउंड यूज किया है। अगर सपोज मैं आपसे पैसे मांगता हूं और 3 साल निकल गए, एज पर लिमिटेशन एक्ट 1963, आफ्टर 3 years that debt is time barred. I cannot go to any court to get that money back. क्लियर है? ये तो हम सबको पता है। अब अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सर, तो वो ऐसे ही आपके पैसे को राइट ऑफ नहीं करेगा बुक्स में। तो आप अगर आरटीआई लगाएंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वुड रिप्लाई कि आपका इतना पैसा आउटस्टैंडिंग है। वंस दैट इज रिप्लाइड अंडर आरटीआई एज पर लिमिटेशन एक्ट, fresh limitation will start. Why fresh limitation will start? Because it is a fresh acknowledgement of debt. वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन एक्ट में एक एक्सक्लूजन है, अगर आपको कोई आदमी फ्रेश बोल देता है यस मुझे आपको ये पैसा देना है, दैट इज अ फ्रेश एक्नॉलेजमेंट, वापस 3 साल चालू हो जाएंगे। ये हमने यूज किया। एक हमारे मित्र हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट करी और उन्होंने फीस के लिए बिल रखे, तो उनके कुछ बिल पे कर दिए, कुछ पे ही नहीं किए, वो रिमाइंडर लिखते गए लिखते गए लिखते गए और 3 साल निकल गए। ऐसा ही होता है, वो रिमाइंडर लिखते हैं फिर बोलते हैं चलो दूसरा काम कर लेते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं फिर भूल जाते हैं। 3 साल निकल गए तो अब तो टाइम बार्ड हो गया। सिविल कोर्ट में अगर आप जाते हो तो आपका मैटर लिमिटेशन पे ही टाइम बार्ड निकाल देते हैं, वो आगे सुनते ही नहीं है मैटर को। तो इसलिए हमने वहां पे आरटीआई लगाई कि आप हमारे अपनी बुक्स में कितना अमाउंट पेबल है टू दिस ऑडिटर, प्लीज गिव मी द डिटेल। आप मानेंगे उसका जवाब नहीं आया आरटीआई का।
लेकिन फोन आ गया ऑडिटर के पास कि भाई साहब आप आ जाओ, डिपार्टमेंट में बैठ के जो भी आउटस्टैंडिंग है क्लियर कर लेते हैं. So that is how things work. You can use RTI even to overcome limitation act. अगेन ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी पर्सनल आरटीआई है. मैंने नंबर भी लिखा है, आप में से कोई भी जाके इस आरटीआई को खोल के देख भी सकता है. इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये कवर हुई थी. ये पिछले साल की ही आरटीआई है, मैंने 2020 में की थी. एक्चुअली मैंने इसका चालू ऐसे हुआ था, बैकग्राउंड ये था कि अभी मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम क्लियर किया था. कोविड में हम लोग जब थे तो हमने सोचा चलो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप किसी भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, ऐसा लॉ है. अभी जब मैंने क्लियर किया तो मेरे को ऐसा लगा कि इतनी सारी कंपनीज में अगर वैकेंसी है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं अपॉइंटमेंट कर रही. तो मैंने काफी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी किया. जैसे काफी अच्छी अच्छी कंपनी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी है, भेल है, बीपीसीएल है, आईओसी है. आप कंपनीज के नाम देख सकते हैं. इतनी सारी कंपनीज में से मैंने कुछ कंपनीज का स्क्रूटनाइज किया और देखा कि इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे को कहीं कोई लॉ नहीं पता होगा कि ये नॉन कंप्लायंस कैसे कर सकती है, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट रूल बना रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ही इसके अंदर शेयर होल्डर है, सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है. तो मैंने आरटीआई लगाई और आप मानेंगे 9 साल से ये 6 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है. आप देखिए फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ इयर्स एंड नंबर ऑफ कंपनीज डूइंग नॉन कंप्लायंट. ये सारी कंपनीज इंडिया की महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना कंपनीज है और दे आर नॉट हैविंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड. ये है नॉन कंप्लायंस के कारण जो पेनल्टी इंपोज करी है स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी के ऊपर, उसका अमाउंट आप देख सकते हैं. कुछ रफली 10 एक कंपनीज है जिसके ऊपर 6 करोड़ रुपए पेनल्टी इंपोज हो चुकी है. मतलब गवर्नमेंट एक बाजू लॉ बना रही है, दूसरे बाजू फॉलो नहीं कर रही है और तीसरे बाजू पेनल्टी भी लग रही है. तो मैंने ये आरटीआई लगाई थी, सी ओनली 3 लाइनर आरटीआई, और इसका जवाब मुझे कम से कम 8 महीने तक आते रहे. Information relating to number of vacancies of independent director in listed PSUs on Bombay Stock Exchange as on, because ये मैंने उस समय लगाई थी 30th September 20, और लास्ट अवेलेबल डेट. सी आपको आरटीआई लगाते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि आप ऐसी लैंग्वेज लिखें जिसको कहीं वो लूप होल बना के निकल नहीं जाए. लास्ट अवेलेबल डेट का मतलब अगर 30 सितंबर नहीं भी है तो आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो तो दो, अदरवाइज वो क्या बोलेंगे, इस तारीख का कोई डेटा है ही नहीं या हमने अभी तक कोलेट नहीं किया. सेकेंड क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेविड बाय स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और आरओसी फॉर वायलेशन ड्यू टू नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड सो एंड सो. तो जितनी भी पेनल्टीज थी सारा आप डेटा दो, क्योंकि पेनल्टीज तो लगी होगी, अगर नहीं लगेगी तो भी दिक्कत है, तो वो तो शो कॉज नोटिसेस और पेनल्टी तो निकल जाती है इमीडिएटली. Third and the most important, document relating to steps taken to rectify the default committed under point 1. तो अगर ये डिफॉल्ट हुआ, नोटिस आया, तो ऑब्वियसली कोई करेक्टिव एक्शन तो होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो करेक्टिव एक्शन तो लेना जिम्मेदारी है उनकी. आप मानेंगे आरटीआई जाने के बाद सबने रिमाइंडर डाल दिया और फिर वो रिमाइंडर की कॉपी मुझे आरटीआई में भेजी कि साहब हमने मिनिस्ट्री को लिख दिया, मिनिस्ट्री ने एक्शन नहीं लिया. तो इस कारण से वी क्रिएटेड सम प्रेशर ऑन द मिनिस्ट्रीज टू एक्चुअली अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इनडायरेक्टली. सो समटाइम्स योर आरटीआई मे नॉट बी, आपको मेरे को टाइम नहीं मिलेगा शायद जाके कुछ सोसाइटी के लिए करने का, लेकिन इन अ वे इफ यू फाइल आरटीआई यू कैन एक्चुअली हेल्प द सोसाइटी. दिस इज अ वन ऑफ द एग्जाम्पल. सेकेंड, अगेन दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एसबीआई के अंदर आई फाइल्ड एन आरटीआई रिलाइंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि हमको विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट दी जाए, जिनका भी डिफॉल्ट 100 करोड़ एंड अबव है उन सब की लिस्ट दी जाए जो विलफुल डिफॉल्टर है. सो दे गेव अस द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर व्हेन वी वेंट इन अपील टू फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है. सो दिस इज ऑल्सो अ केस वेयर बाय यू कैन गेट एवरी डिटेल्स अंडर आरटीआई, वेदर वो विलफुल डिफॉल्टर है, वो कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है, उसके प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर है, आप सारी डिटेल्स आरटीआई में निकाल सकते हो. दो अब तो सारी बैंक्स ने अपनी होम पेज पे रख दिया है, बट यस
3 साल पहले ये चीज नहीं थी। ये केस है अगेन गुजरात हाईकोर्ट का केस है, बिकॉज मैं गुजरात में प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए यहाँ के केसेस ज्यादा पता है। द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिड नॉट गिव द इंफॉर्मेशन। एक लैंड का डिस्प्यूट चल रहा था दो पार्टीज के बीच में, उसने आरटीआई लगाई और उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये बोलते हुए कि ये इंफॉर्मेशन वी आर नॉट लाइबल टू प्रोवाइड यू दिस इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, उन्होंने डिनाई कर दी, टेकिंग द ग्राउंड कि दिस वी कैन नॉट गिव यू। जब वो अपील में गया तो अपील में जब उनको बोला कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया और बोला कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास, ये रिकॉर्ड तो अर्थक्वेक में खत्म हो गए। तो हाई कोर्ट केम डाउन वेरी हैवीली ऑन दिस कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है, आप मिसलीड नहीं कर सकते। आपके पास इंफॉर्मेशन और आप डाइवर्ज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस, वो आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिसलीड कर रहे हो। और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जिस पीआईओ ने ऐसा मिसलीडिंग जवाब दिया है उसके अगेंस्ट एक्शन हो। सो नॉट ओनली दैट 25,000 कॉस्ट but also action should be initiated against such PIO who has done this. Now this is again a Supreme Court judgment which is very important. ये 24 आवर्स अगेन, ये दिल्ली का जजमेंट है जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि हर पुलिस डिपार्टमेंट को जो भी एफआईआर रजिस्टर होती है 24 आवर्स के अंदर उसको अपलोड करना है, वेबसाइट पे आपको सारी एफआईआर मिल जाएगी। क्या हमको एफआईआर की कॉपी आरटीआई में मिल सकती है? आंसर इज यस, अब तो ऑनलाइन अपलोडेड भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन हुई है पुलिस में और हमारे को उसकी कॉपी नहीं देते, वो आपको बुलाते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आओ। तो आपके पास दो ही रेमेडीज है, कहीं मैं स्टेटमेंट देने गया और मैं एप्रीहेंड कर रहा हूँ कि गलत मैटर में मुझे अरेस्ट कर देंगे तो मुझे एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट मूव करना पड़ेगा, और क्लोज हो गई अगर कंप्लेन, मैं गया स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और उन्होंने कंप्लेन ड्रॉप कर दी, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि कंप्लेन में एलिगेशंस क्या थे, क्योंकि वो ऑफिशियली कंप्लेन की कॉपी आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो आप आरटीआई में उस कंप्लेन की कॉपी मांग सकते हो और मांगने के बाद डिफेमेशन का केस सामने वाले पे डाल सकते हो। अगर केस ड्रॉप हो गया है, अगर आपके मेरिट सही है, तो आप डिफेमेशन का केस कर सकते हो, सिविल क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों आप कर सकते हो। So this is very, very important judgment and citation. You can use it. Other way around also, under RTI, you are having the right to get the copy of the complaint. Now, this is again my own case where I had filed RTI asking for the status of appointment of officers for the रेरा appellate tribunal. इधर बैकग्राउंड ऐसा था कि रेरा के अंदर अपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं था, उन्होंने फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल को रेरा अपेलेट ट्रिब्यूनल का डेजिग्नेशन दे दिया। अब लॉ क्या कहता है कि दो जज होने चाहिए, वहां पे एक ही जज थे। लॉ कहता है उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशंस नहीं थी, प्लस उन्होंने कोई नया इनिशिएटिव भी नहीं लिया कि अपॉइंटमेंट चालू करें। तो वी फाइल दिस पिटिशन इन 2019, लॉ आ गया था 2017 में, तो 3 साल तक उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं किया। आरटीआई में हमने सारी डिटेल निकाली कि दे हैव टेकन नो एक्शन, दे हैव जस्ट डेजिग्नेटेड, एंड देन वी सेड दैट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एंड हाई कोर्ट में हमने पीआईएल करी। आई ओनली फाइल द पीआईएल इन द हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट गेव अ वेरी गुड डायरेक्शन सेइंग दैट कि आपको लिमिटेड टाइम बाउंड मैनर में अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने पेंडिंग द पिटिशन एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। अब एडवर्टाइजमेंट में ऐसा है कि लॉ बोलता था चीफ जस्टिस कमिटी में रहेंगे और कमिटी डायरेक्शंस देगी एडवर्टाइजमेंट को कैसे निकालना है कंसल्टेशन में। उन्होंने बिना सीजे को इंक्लूड किए एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। तो फिर हमने पिटीशन में अमेंडमेंट मूव करके वापस चैलेंज किया कि एडवर्टाइजमेंट गलत है। आप मानेंगे, जैसे ये इश्यू आया कोर्ट में, इमीडिएटली उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मिस्टेक और नया अपॉइंटमेंट सीजे चीफ जस्टिस के साथ कमिटी में बैठ के कर दिया, और ये मैटर लेस देन 8 मंथ्स में डिस्पोज ऑफ हो गया। और इतना फास्ट डिस्पोज ऑफ हुआ कि आज फुल फ्लेजेडली रेरा अपेलेट ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग कर रहा है। कोविड के दौरान उन्होंने ये किया, ये कोविड के जस्ट पहले फाइल हुई थी और कोविड के दौरान उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया। तो आज एक पूरा कोर्ट चालू हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन आरटीआई। और सिमिलरली हमने राजस्थान में भी किया, और राजस्थान में भी मैंने साइटेशन दिया है। उसमें तो मैटर हमारा जब तक रीच होता उसके पहले ही गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट कर दिया था। सो आई कैन नॉट से कि इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अस, बट यस वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव इन बोथ द स्टेट्स।
नाउ दिस इज अगेन डीमोनेटाइजेशन का काफी इंटरेस्टिंग केस है। डीमोनेटाइजेशन के अंदर आरटीआई लगाई गई टू अंडरस्टैंड कि क्या आरबीआई को पता था कि डीमोनेटाइजेशन होने वाला है। पहले तो 18 मंथ्स तक इसका जवाब नहीं दिया गया, फिर ये काफी बैक एंड फोर्थ हुआ, उसके बाद जवाब आया। उसमें पता पड़ा कि बोर्ड ऑफ आरबीआई डिड नॉट एग्री फॉर डिमोनेटाइजेशन एंड ओनली वन डिप्टी गवर्नर वाज वर्किंग ऑन दिस डिमोनेटाइजेशन। Otherwise, the governor was also not aware about this action of government. So ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे पास आरटीआई में आते हैं। आई हैड ऑल्सो चैलेंज दिस डीमोनेटाइजेशन मूव। मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मोर देन आई थिंक 4 years have passed. I don't know when it is going to be heard again. But yes, there are some issues which we should not discuss. But yes, we can file RTA and get some information. अब ये ऑनलाइन पोर्टल है, आप ऑनलाइन RTI online.gov.in पे जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्रीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आप देखिए पहला ही पहला कॉलम सेलेक्ट मिनिस्ट्री है। इधर आप मिनिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल मिनिस्ट्रीज आर देयर। नीचे आप जाएंगे सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। अब अगर आप ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री चूज करेंगे तो नीचे आरबीआई भी आ जाएगा, नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ जाएगा, तो बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करेंगे तो आरओसी आ जाएगा, इनकम टैक्स कर सकते हैं, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी डिपार्टमेंट, सब स्टेट वाइज सारी चीज आएगी पब्लिक अथॉरिटी में। तो आपको जहां पे भी आरटीआई लगानी है, आपको मिनिस्ट्री और पब्लिक अथॉरिटी दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ भी नहीं, आपको अपनी नाम और डिटेल्स डालनी है। Then at the end you have to declare you are below poverty line or not. बिलो पॉवर्टी लाइन अगर है तो उसको 10 रुपए की फीस भी नहीं देनी है। अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है तो उसको 10 रुपीज की ऑनलाइन फी पे करनी है। आप देखेंगे तो टेक्स्ट ऑफ रिक्वेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे लिमिटेशन है, कैरेक्टर कुछ 200 से ज्यादा नहीं आते। तो आप नीचे देखें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में चूज फाइल लिखा हुआ है, तो आप अपनी फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम ईमेल में अटैचमेंट करते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर जो ऊपर डालेंगे उस पर आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी पंच करके पेमेंट करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर एसएमएस से भी आएगा और ईमेल से भी आएगा, और विद इन 30 days आपके पास इसका डिस्पोजल आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर वेरी फास्ट। 30 to 45 days में मुझे प्रैक्टिकली सारे रिप्लाईज मिले हैं। सो आई वुड से कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो स्टेट में अलग अलग स्टेट में कहीं अलाउड है, कहीं नहीं है, कहीं ऑनलाइन पोर्टल है, कहीं अभी भी ऑफलाइन चल रहा है। तो स्टेट वाइज तो आपको दिखना पड़ेगा, बट यस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिस इज द बेस्ट वे टू गेट द इंफॉर्मेशन। सो अग्रवाल जी, आई थिंक क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, बिकॉज़ आई हैव कंक्लूडेड व्हाट आई वांटेड टू से। सर म्यूट पे हैं आप, अग्रवाल जी म्यूट पे हैं आप सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओनली 10 क्वेश्चन आर हियर। आप सर पढ़ के रिप्लाई करेंगे या मैं पढ़ूं सर? मैं पढ़ लेता हूं सर, कोई इशू नहीं है। जी सर। Can we ask some information from private school which was not received any single rupee from state government? If yes, then can we ask directly to school management or to government department? So Siddharth Shankar ji, private school में you do not have the right to ask from private school, but उनका जो education department है, DEO जो हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके पास पावर होती है, आप वहां आरटीआई लगा के डिटेल मांग सकते हैं। अगर आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या इन्फॉर्मेशन मांगनी है तो शायद मैं आपकी कुछ ज्यादा हेल्प कर पाऊं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग प्राइवेट स्कूल से आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। देवेंद्र खुराना जी, वेदर आरटीआई कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम फॉर एनी पुलिस वर्किंग ऑल ओवर इंडिया और टू बी फाइल्ड विद रेस्पेक्टिव पुलिस आरटीआई ऑफिस स्टेट वाइड। सो खुराना जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर स्टेट पुलिस नहीं आती है, सीबीआई जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आएगी जो सेंट्रल है। अगर आप स्टेट की बात कर रहे हैं, एवरी स्टेट के अंदर भी होम मिनिस्ट्री होती है, वहां आप आरटीआई में पुलिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगेन आपका एग्जैक्ट क्या मांगना चाहते हैं वो बताएंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे। छोड़ दीजिए। ओके, whether companies like Vodafone, Airtel are covered under RTA? Again, sir, these are private companies, not covered directly, but आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में RTA लगा के मांग सकते हैं।
Please explain the procedure to obtain copy of document available in the file of ITO/AO on behalf of SSC. Also, how can we apply for the same online? सर, जब आप ऑनलाइन का पोर्टल जो मैंने बताया है, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाएंगे तो नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा और डिपार्टमेंट भी स्टेट वाइज है, तो आप ऑनलाइन भी मांग सकते हैं और ऑफलाइन भी आप फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं आरटीए जाके। और अगर आपको नहीं जाना है फिजिकली तो आप क्या करिए, रजिस्टर्ड एडी से भेज दीजिए, तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट रहेगा और 30 डेज में वो आपको जवाब भी दे देंगे। राकेश अग्रवाल जी, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट वेदर इट इज इक्विवेलेंट एज अ ग्रांट? यस सर, फॉर द पर्पस ऑफ आरटीआई दे विल बी इंक्लूडेड और आप पब्लिक अथॉरिटी बना सकते हैं। सुनील मिनोचा जी, सर टू विच अथॉरिटी कैन वन अप्रोच इन द इवेंट ऑफ रिफ्यूजल और डिले इन गेटिंग इंफॉर्मेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग पीआईओ लायबल फॉर पेनल्टी? मिनोचा जी, जब आप फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी के पास जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप इस सेक्शन 20 के अंदर एक्शन लो और 25,000 की कॉस्ट इम्पोज करो। आप हमेशा अपेलेट अथॉरिटी में ही जाके बोल सकते हैं कि पीआईओ ने सही काम नहीं किया और आप कॉस्ट इम्पोज करिए। Sanjeev Jain ji, whether we should deposit tentative amount as an advance through net banking along with application fee towards prescribed photocopy or should we wait for exact amount? Very good question Sanjeev ji. मैं हमेशा ऐसे ही सजेस्ट करता हूँ कि जैसे फीस है 10 रुपए और फिर आपको लग रहा है कि टेंटेटिवली 500 डॉक्यूमेंट है, तो आप अंदाजन 1000 रुपए का डीडी बना लीजिए। आपका एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट के पास रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कम रह गया तो वो आपसे मांग लेंगे। तो यस, यू कैन प्रिपेयर अ हायर अमाउंट ऑफ डीडी एंड गिव देम, नो इश्यू। गुलाटी जी का आई डोंट नो नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कौन सा जजमेंट पूछ रहे हैं पता नहीं। चलो वो तो आपकी पीपीटी में होंगे, वो शेयर कर देना, हो जाएगा उसमें। जी जी सर। नीरज गोयल जी, हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट विच रिलेट्स टू 1970 टू 71? ओके गोयल जी, आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है, सी आरटीआई में एक प्रोविजन ये है कि अगर डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है तो वो दे सकते हैं, बट अगर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। If any commercial activity is carried out at residential place, what is the remedy for that? Can we file PIL for that? सर हितेंद्र ठाकर जी, इसके अंदर ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है तो आपको पहले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है लोकल, वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वहाँ पे आरटीआई लगा के डिटेल निकालनी पड़ेगी कि वहाँ कोई परमिशन उन्होंने ले रखी है कि नहीं, क्योंकि काफी बार कुछ लोग अपने ऑफिसेस को घर से चलाते हैं और कुछ लॉ में परमिटेड है, जैसे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सब अपने घर से यूज कर सकते हैं। एक सेंट्रल लॉ है जो ये अलाउ करता है कि आप अपने घर का 40% एरिया यूज कर सकते हो फॉर एक्टिंग कमर्शियली। ओके, गुलशन गुलाटी जी का क्वेश्चन है, प्लीज इलेबोरेट अगेन ऑन कॉपीज ऑफ कैमरा रिकॉर्डिंग फ्रॉम जीएसटी अथॉरिटी। सर मेरी पीपीटी में शेयर करूंगा, उसमें साइटेशन है, आप कैमरा से फोटो भी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BS गोयल जी, वेयर टू अप्लाई फॉर एग्जाम ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कॉस्ट इन्वॉल्व? ओके, सो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो वेबसाइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जुड़ी हुई है, तो आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगी। और आई थिंक कुछ फॉर 1 ईयर 6,000 रुपीज इज द फी, और वो फी भरने के बाद आप एग्जाम भी दे सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। Can we ask information under section 41C and D for opting new income tax website statement of facts and justification? सर ये तो इनकम टैक्स में ऐसा कोई परमिशन अभी तक मेरे नॉलेज में तो नहीं है, कुछ आएगा तो जरूर हम करेंगे। Reliance Fiber is not providing tax invoices to my CA office and I am losing on GST input and they are insisting me to take their enterprise solution which are extremely costly. How to fix this company? ओके सर, आपका केस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का केस है, वैसे आरटीआई में इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, बट हाँ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यू कैन गिव देम अ नोटिस कि आप जीएसटी इनवॉइस हमको दीजिए। कैन वी हैव डेटा मैट्रिक्स ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन एक्सेल? सर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ ड्रॉप डाउन मेनू में आपको सब चीज मिल जाती है। ओके, किशोर लूला जी का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मोर देन 1 ईयर सेकेंड अपील पेंडिंग है, तो सर अगर आपकी स्पेसिफिक अपील पेंडिंग है तो आप हाई कोर्ट जाके डायरेक्शन ले सकते हैं कि ये मैटर को एक्सपीडिशियसली सेकेंड अपील में रिजॉल्व किया जाए। नॉर्मली हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे देती है
कि 1 महीने में सॉल्व कर दो, 4 हफ्तों में कर दो, 2 महीने में कर दो, ऐसा एक टेंटेटिव टाइमलाइन नॉर्मली हाईकोर्ट देती है। तो आप हाईकोर्ट में लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। नीरज गोयल जी, information was available with them and we sought refund and submitted all the document and then it was misplaced. Okay, तो you can under RTI ask this and they will give you in writing के misplace हो गए, तो वापस मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स आपसे। उन्होंने मिसप्लेस किए, आप उनको लायबल हेल्ड कर सकते हो, कॉस्ट इम्पोज करवा सकते हो। संजीव जैन जी, थ्रू नेट बैंकिंग, यस इट इज पॉसिबल। ये जो मैंने वेबसाइट बताई इसमें नेट बैंकिंग से पेमेंट है। Any penalty for non-compliance of RTA? Yes, I have told 25,000 is the cost maximum which can be imposed on the PIO. Sachin Jain ji, if SARS officer is not providing old refunds of 2011, you can yes use the RTA and get your refunds processed 100%. Agarwal ji, I think I have taken all the questions. One more question. दो क्वेश्चन और आए हैं सर। Okay. So can you explain on filing RTA application in tourism department of Sardar Sarovar Nigam Limited at Kevadia Colony in Gujarat state? Okay, उमेश कुंज जी, आपको ऑफलाइन जाके फिजिकली ही सरदार सरोवर में RTA लगानी पड़ेगी, बिकॉज गुजरात में अभी ऑनलाइन RTA का पोर्टल नहीं है। सरदार सरोवर का अलग से आपको लगाना पड़ेगा ऑफलाइन जाके। Ahuja ji, how the whistleblowers are protected? RTA is not exercised most of the people due to certain apprehension. Ahuja ji, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है। कुछ लोग जो विसल ब्लोअर होते हैं उनको थ्रेट्स भी मिले हैं। मैं खुद आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल द वायर पे कुछ टाइम पहले, जहाँ पे काफी सारे RTI एक्टिविस्ट को मर्डर कर दिया, धमकी मिल गई। तो सर ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये है, बट वी विल हैव टू लिव विद इट। अगर ऐसा कोई एप्रीहेंशन है तो पहले से ही पुलिस में, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके रखें। अदरवाइज इट इज मींस आई कैन नॉट एक्चुअली टेल यू कि क्या करना चाहिए, बिकॉज अंडर RTA इफ यू आर आस्किंग समथिंग और किसी के पर्सनल इंटरेस्ट हिट हो रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। Whether PIL has to be filed with the help of advocate or through a person who has not been responded by PIO, can we directly approach High Court or Supreme Court? नीरज गोयल जी, अगर आपको इंफॉर्मेशन PIO नहीं देता है तो आपके पास फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है, आपको फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी में अपील करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं जा सकते। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी आपको नहीं सुनती है तो आपके पास सेकंड अपेलेट अथॉरिटी है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है, डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। Appellate order copy was sought but it was not legible. How to seek the clearly legible copy where the original order itself is not readable? This is to be filed in appeal case before the VAT tribunal. ओके, सो अगर वो लेजिबल कॉपी नहीं है तो आपको वापस से रिक्वेस्ट करना चाहिए लेजिबल कॉपी के लिए, और अपील फाइल कर देनी चाहिए इलेजिबल कॉपी की, और अपील में ये प्रेयर मांगनी चाहिए कि आप डायरेक्ट करो लोअर अथॉरिटी को कि हमको लेजिबल कॉपी प्रोवाइड करें। Lula ji, any matter to take in high court cost advocate fee minimum 1.5 lakh which is not affordable? लूला जी, जैसे कि हमारे पास सारी फीस के CA होते हैं वैसे ही सारी फीस के भी एडवोकेट्स होते हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। आप मेरे से बात करिएगा, मैं शायद आपको कहीं हेल्प कर पाऊँ। ठीक है सर, थैंक यू निपुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप फॉर योर प्रीशियस टाइम and elaborating each and every thing of the RTI Act. I request Sunil Damija ji kindly present a vote of thanks, sir. Over to Damija ji, sir. Thanks a lot, Nipunji. Very nicely, very lucidly, you have covered the entire provisions, overview of the RTI Act and giving us the complete information of the Information Act. This is basically, speaks about your experience and the practical way of handling the problems of being faced under the RTI Act. And you have also covered the entire gamut of precedents, various case laws, various authorities, and not only that, the basic definitions also, giving us the details of the
what is information, public authority, and where to act, and some tricky situations also where we have to and in what manner we have to apply for the information. So I think you have very well covered and answered all the questions, and I would be very thankful. We are all thankful to you, the way you have done it, and you have enriched us with your practical experience. We request you, time permits, any time in future, you please come here again, join us, and teach us the. I am literally saying, teach us the various other technicalities and intricacies of the RTA. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much.